Now, economy and society is a relatively easier unit, which is also very important for any other aspirants, even the masters. So अगर आप लोगों को लग रहा है कि इकोनॉमी और सोसाइटी जो नेट में दिया है, अगर उसके हिसाब से आप लोग फॉलो करेंगे, the same thing is followed for masters exams as well. So you people do not need to cover any other topic. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, especially to master students, that कोई भी standard net का syllabus अगर first to last आप लोग खत्म करेंगे, masters exams become very very easy to crack. In the same way, economy and society is also very, very easy. However, in this unit, you people have to make sure that there is a very strong theoretical portion. एक बहुत strong theoretical portion है, plus कुछ factual. इसमें ज़्यादा facts नहीं है, not many facts, but some of the facts. There is no such specific book for any unit as such कि एक एक unit हर एक किताब में cover किया है, ऐसा नहीं है. For this unit, you have to look at several books. For example, you can look at Harolambas for several parts on economy. You have to look at IGNO. You have to look at several more books here and there. Internet में बहुत सारे sources freely available होते हैं. So it's all scattered. So I cannot say that you have to follow one specific book for this unit. You need to look at several books. Several standard books जो मैं हमेशा आप लोगों को already बोलते आ रही हूँ, नितिन सांगवान etc. Okay, अच्छा. Now this is something very very important that you people need to remember. Uh, uh, Yes. Now, those students who are my plus students, you just have to follow my PDF. But now, don't ask me the chapter numbers. कि कौन से book का कौन सा chapter है? That just open and check. All the e-copies I have already provided. आप लोग खोल भी नहीं सकते e-copy और देख नहीं सकते कौन सा chapter है. That is such a silly question to ask to the teacher to tell the chapter number. Chapter भी इसके नाम से ही होगा economy. You just have to open and check. Anyway, so let's start. Let me tell you people what all are the topics and what all things that you people need to read. सबसे पहले हम लोग देखते हैं the topic of exchange. But remember, मैंने आप लोगों से कहा है कि इस unit में आप लोगों को थोड़ा बहुत theory clear करना पड़ेगा. जैसे कि exchange होता क्या है, what is exchange, उसके बाद types of exchange. Now, exchange का meaning हम सबको पता है, give and take. आप कोई चीज give कर रहे हो, दूसरा इंसान आपको टेक कर रहा है. यस, सो गिव एंड टेक इज अ नॉर्मल एक्सचेंज नोशन. नाउ इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, बहुत सारे थियरिस्ट्स आते हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता एग्जैक्टली. मेनी पीपल हैव वर्कड ऑन दीज सच एज मैलिनोस्की, उसके बाद यस मार्शल मॉस का गिफ्ट के बारे में सब कुछ आप लोगों को देखना है. व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू गिफ्ट. मास्टर्स के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं मार्शल मॉस के उससे. उसके बाद पीटर ब्लाउ, वेरी गुड. However, पीटर ब्लाउ के पास मैं बाद में आऊंगी, उसके पहले हम लोग पोलानी को मेंशन कर देते हैं and several more people. Now, exchange के टॉपिक में all you people need to remember is that कि काफी टाइम स्टूडेंट्स ये भी गलत करते हैं या फिर ये भी भूल जाते हैं कि मार्क्स के जितने भी राइटिंग्स हैं, मार्क्स का बेसिस था द थियरी ऑफ एक्सचेंज, दैट हाउ लेबर और लेबरर्स आर सेलिंग देयर लेबर एंड टेकिंग सैलरी. सो यहाँ पे भी आप एक एक्सचेंज कर रहे हैं. सो मार्क्स का जो वाइटल थियरी है, द लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, उसको पूरा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा. लेबर पावर क्या होता है, व्हाट इज सरप्लस वैल्यू, सरप्लस लेबर क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, एटसेट्रा. सो यू कैन रीड दिस फ्रॉम एनी सोर्स दैट यू पीपल आर फॉलोइंग. प्लस स्टूडेंट्स को आई हैव ऑलरेडी टॉट दीज topic, so I don't think you people should be having any problem. गिफ्ट के बारे में मैंने आप लोगों से ऑलरेडी कहा है, कमोडिटी, यस कमोडिटी एटसेट्रा, ये सारे चीजें. गिफ्ट के बारे में I already told you that there are 2-3 people who have worked on, for example, ceremonial exchange, मालिनोस्की का कूला रिंग के बारे में, मार्शल मॉस. Many people have studied different kinds of gift, not just these two people, but different types of gifts. Yes, William Weiser नहीं आएगा. He never worked on any kind of gift system. And if you do not know that Jajmani is a barter system and not a gift exchange system, तो फिर आपका basics ही पूरा problematic है. Yes, Franz Boas had studied the potlatch system. पॉटलैश में क्या होता है क्या नहीं, कंस्पिकुअस कंजम्पशन क्या होता है, इन सारी चीजों से क्वेश्चन काफी बार आ चुकी हैं. कि कैपिटल के टॉपिक में यू नीड टू रीड अबाउट मार्क्स, व्हाट इज कैपिटल, क्या होता है क्या नहीं. लेबर एंड मार्केट, अगेन द सेम टॉपिक्स. हाउएवर मार्केट के टॉपिक में कुछ चीजें आप लोगों को बेसिक्स याद रखने हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है. वेलफेयरिज्म, न्यू लिबरलिज्म. हम लोग जब भी इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट मेनी ऑफ यू हैव नॉट रेड इकोनॉमिक्स इन कॉलेज, या फिर आप लोगों का नहीं है इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड. लेकिन जिस तरीके से हम लोग सोशियोलॉजी स्टार्ट करते टाइम, सबसे पहले वी स्टार्ट विथ
ऑगस्ट कोट, सेंट साइमन, उसके बाद हम लोग बाकी लोगों में आते हैं, इजंट इट? सो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पहले कुछ फाउंडिंग फादर्स के थियरीज को पढ़ते हैं, उसके बाद हम नीचे आते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एडम स्मिथ के साथ। We start with Adam Smith because he is the basis of the idea of free market, or what we call the liberal economy. Okay. सो फ्री मार्केट लिबरल इकोनॉमी के बारे में अगर हम लोगों को पढ़ना है, अगर समझना है, तो सबसे पहले हमें एडम स्मिथ के साथ शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल नॉट अंडरस्टैंड। इसके बाद यू कैन ऑल्सो गो थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ रिकार्डो, बट ऑनेस्टली रिकार्डो इज नॉट नेसेसरी। इसके बाद यू कैन डायरेक्टली जंप टू मार्क्स। मार्क्स से रिलेटेड तो सारी चीजें आप लोगों को पता ही है, क्या पढ़ना होता है क्या नहीं, सो यू कैन गो थ्रू दैट आउटलाइन। उसके बाद यू नीड टू कम टू सम रीसेंट पीपल। नाउ हु आर द रीसेंट पीपल टॉकिंग अबाउट वेलफेयर इकोनॉमी? Now, Adam Smith preached a school known as free market, laissez-faire or liberal economy, but welfare economy में हम लोग सबसे पहले रखते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स को। So J.M. Keynes is the third person that you people need to be clear about. What is who is Keynes? Keynes ने बोला क्या था? How is it different from Adam Smith's idea? फिर उसके बाद आपको आना है latest, the neoliberal economy. न्यू लिबरल में किसे पढ़ना है आप लोगों को? दो लोगों को पढ़ना है, फ्रेडरिक हाइक एंड मिल्टन फ्रीडमैन। ओके, नाउ मैंने इतने सारे नाम क्यों लिखे हैं? द रीजन इज दैट इफ योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द यूनिट, नॉर विल यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स दैट आर देयर इन दिस यूनिट। Therefore, it's very important for us to know the basics. Now, Adam Smith ने कहा था कि मार्केट पे सब कुछ छोड़ देंगे, स्टेट बिल्कुल ही इंटरफेयर नहीं करेगा। नो स्टेट इंटरवेंशन। चाहे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आए, चीजों के प्राइसेस बढ़ जाए, कुछ भी हो, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, सब कुछ मार्केट संभालेगा। अब मार्केट संभालता कैसे है? मार्केट कंट्रोल्स विद द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सो दोज ऑफ यू हु डोंट नो, मार्केट में हमारे दो लाइंस होते हैं, एक होता है सप्लाई का, एक होता है डिमांड का। जहां पे सप्लाई और डिमांड का पॉइंट जाके मैच करता है, दैट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम लेवल। द इक्विलिब्रियम लेवल। नाउ इसमें हमारा प्राइस लेवल डिटरमाइन होता है, वट एवर इज द लेवल, और जहां पे भी हमारा मार्केट जाके मैच करता है वही प्राइस लेवल होगा। डज नॉट मैटर वो ज्यादा है कि कम है, एटसेट्रा। ओके, उसके बाद हम लोग मार्क्स में आते हैं। वी ऑल नो मार्क्स टॉक्स अबाउट कम्युनिज्म, सोशलिज्म, स्टेट ओनरशिप, एटसेट्रा। वेलफेयर इकोनॉमी का मेन पॉइंट क्या था? जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था कि अगर सारी चीजें हम लोग मार्केट में छोड़ देंगे, देन पीपल विल नॉट गेट सेटिस्फाइड, बिकॉज सम पीपल विल बी पुअर एंड सम पीपल विल बी रिच। सो अगर मान लो बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ गया, जो गरीब लोग हैं उनका हम लोग क्या करेंगे? देयरफॉर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी। वेलफेयर इकोनॉमी में मेजर पॉइंट ये होता है, स्टेट इज नॉट अ मैनेजर इन वेलफेयर इकोनॉमी। वेरी गुड, स्टेट इज अ कंप्लीट रेगुलेटर। इट इज प्लस स्टूडेंट्स को तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग सीख के आए ये सारी चीजें, अभी भी गलती कर रहे हैं, इट्स वेरी पैथेटिक। स्टेट इज अ कंप्लीट रेगुलेटर। वेरी गुड, सारी चीजें स्टेट कंट्रोल करेगा, सब कुछ। प्राइस मैकेनिज्म क्या होगा, किसका क्या लेवल होगा, एवरीथिंग स्टेट विल टेक। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेट विल ऑल्सो प्रोवाइड वेलफेयर ऑप्शंस। जैसे हमारे इंडिया में हम लोग देखते हैं सब्सिडी वाले सिस्टम्स होते हैं, पीडीएस सिस्टम होता है, राशन कार्ड सिस्टम, एलपीजी गैस सस्ते में मिलता है, सर्टेन वेवर्स। दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी। और एक चीज आप लोगों को जानना है, वेलफेयर इकोनॉमी का मेजर पॉइंटर ये होता है, जो जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था, कि लोग जितना ज्यादा सेव करेंगे, बैंक में जितना ज्यादा पैसे रखेंगे, उतना ही इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सो इट्स अ प्राइमरी equation that you people need to remember, that Keynes said, that savings is equal to investment. Okay, now let's come to neoliberal. अब ये neoliberal में क्या है? We can say Herodomer model, because Herodomer model is nothing but based on the idea of Keynesian savings is equal to investment. Okay, however, Herodomer model changes certain things. It talks about capital output ratio as well, but let's not go into that. I have taught you people Herodomer model in a free class 2-3 months back. Yes, acha. Now
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू लिबरल इकोनॉमी? न्यू लिबरल इकोनॉमी और लिबरल इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है? न्यू लिबरल में इन्होंने कहा कि ठीक है, हम स्टेट को कंप्लीटली बाहर नहीं रखेंगे जैसे एडम स्मिथ ने कहा था, बट हम यहाँ पे स्टेट को मैनेजर का रोल दे देंगे. सो स्टेट इज अ मैनेजर हियर. यस, स्टेट कंट्रोल रहेगा बट नॉट इंटायरली. मार्केट कंट्रोल करेगा लेकिन स्टेट भी रहेगा एज अ मैनेजर. यस, तो जहां पे स्टेट हमारा बिजनेसमैन के साथ मिलके हमारा चीजें आगे लेके जाएगा. एम आई क्लियर? सो न्यू लिबरल में इन लोगों ने कहा था दैट नो, वी विल नॉट गिव एवरीथिंग टू द स्टेट, बट स्टेट विल बी देयर एज अ मेयर मैनेजर, otherwise market is going to rule. That's the only difference between liberalism and neoliberalism. Am I clear? इतना क्लियर है? एटलीस्ट ब्रॉड स्कूल्स ऑफ थॉट तो क्लियर है. यस, मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन, बट स्टेट इंटरवेंशन विल बी देयर. कंप्लीटली हम लोग उसे अप्रूव नहीं करेंगे. यस, अच्छा. Now, in these topics where I have written labor, I hope all of you know about the concepts of labor. क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं if you people have read Marx or you people have prepared yourself completely? क्योंकि otherwise अगर हमारा एग्जाम reschedule नहीं होता, एग्जाम तो मंथ में ही, मई मंथ में ही होना था. Yes, so you have to tell me that what is the difference between labor and labor power. लेबर और लेबर पावर के बीच डिफरेंस क्या है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन दीज टू टर्म्स टू मी फ्रॉम मार्क्सियन लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू? मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स ने लेबर पावर का वर्ड क्यों दिया था? लेबर के साथ ही तो हो जाता था. Can anybody give me a good understanding? Anybody who has watched my plus class on Marx should be knowing it very well. So if you give me wrong answer, I'll clearly understand that you have not watched the classes. Yes, labor power is a physical and mental capacity. What else? Now, Marx says that, right. Okay, so basically difference definition आप लोगों को पता है. Yes, that labor power में हम लोग जितना mental, physical effort लगाते हैं काम करने में, जो हम sell कर रहे हैं. For example, right now I'm talking to you people, तो मैं फिजिकल मेरा लेबर यूज कर रही हूँ प्लस मेंटल, मैंने ये सब चीजें पढ़ के आई हूँ, मैं आप लोगों के लिए स्लाइड्स बनाया है. सो ये सारी चीजें मैं सेल करके मेरी सैलरी मिल रही है मुझे. एम आई क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड लेबर पावर क्या हुआ? नाउ मार्क्स ने कहा था कि लेबर आर सिंपली द वर्कर्स. What workers sell is the labor power. और मार्क्स ये बहुत क्लियरली कहते हैं that लेबर के पास या फिर लेबरर्स के पास there is nothing else but only labor power that they can sell. Only thing that they can sell. उनके पास और कुछ नहीं होता है, सिर्फ लेबर पावर होता है जो वो बेच सकते हैं, और इसी को बेच के वो लोग चीजों को लेते हैं. Am I clear? I mean, salary लेते हैं. Now, another thing that you people need to remember is that Marx ने कहा था that कोई भी commodity जो आप बना रहे हो by using your labor power, let's assume मैं अपना example के थ्रू समझाती हूँ. For example, मैंने slides बनाए आप लोगों के लिए. So ये मेरा commodity हो गया जो मैं sell कर रही हूँ. Yes, so these slides are my commodity. Now Marx says कि इन commodities में ये सारे जितने भी abstract labor है वो congealed form में होता है. What is the meaning of this? Please understand. You people don't know the meanings, don't read Marx, don't read Das Kapital. That is the reason जाके एग्जाम में गेट जैसे इजी पेपर में you say that you don't know the meaning of these terms. Now listen to me carefully. He says कि अब मैंने मान लो ये स्लाइड्स आप लोगों के लिए बनाए हैं. I have made these slides for you people. इस स्लाइड में कहीं ना कहीं मेरा जो एफर्ट्स था, whatever efforts I have given, जितना भी मेरा लेबर पावर है, वो एक congealed means what? एक छुपा हुआ वर्जन में इन स्लाइड्स के अंदर है. सो दीज स्लाइड्स आर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ माय, वेरी गुड, इट्स अ हिडन फॉर्म और अ मैनिफेस्टेशन ऑफ माय लेबर. सो फॉर एग्जाम्पल ये पेन जिसने बनाया होगा, इस पेन में उस इंसान का लेबर पावर है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. नॉट कंसील्ड, इट्स कंजील्ड फॉर्म. आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ कंजील्ड. ओके, सो इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट लेबर जिसको हमने शेप दिया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजील्ड? कंजील्ड होना मतलब फ्रोजन हो जाना, एक शेप में आना. सो मेरे लेबर को मैं दिखा तो नहीं सकती, बट उसको मैं एक फॉर्म दे सकती हूँ थ्रू द पेन दैट आई हैव क्रिएटेड. एम आई क्लियर?
Am I clear on this? So there are certain terms that might be asked, and if you people are not clear with these terms, तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा. So you can always go through these terms on internet etc. अगर ओरिजिनल नहीं पढ़ना है फिर भी आप लोग इंटरनेट वगैरह से ये सारे टर्म्स हमेशा देख सकते हैं. यस. अच्छा. So state and market के टॉपिक में I have already told you about welfareism and neoliberalism, just the meaning and the people. And neoliberalism में आपको इंडिया के एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ना है, कब आया था, क्या नहीं, क्यों आया था. These are certain things. 1991 में आया था, क्यों आया था, etc. Mode of production debates is a very very interesting topic जो इंडिया में हुआ था, and many of you do not know. Now mode of production के बारे में सबसे पहले किसने कहा था? Who is the person जिन्होंने सबसे पहले मोड ऑफ प्रोडक्शन के डिविजन्स को दिया था? मार्क्स ने दिया था. यस. वेरी गुड. नाउ मार्क्स ने जो डिफरेंट 5 टाइप्स हमें दिए थे उसके हिसाब से देयर वर सर्टेन इकोनॉमिस्ट्स इन इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम उत्साह पटनायक in late 1970s and 80s. इन लोगों को ये लगा कि चलो मार्क्स ने तो हमें मोड ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारे दिए हैं, बट इंडिया में कौन सा मोड ऑफ प्रोडक्शन है? क्योंकि हम तो नहीं कह सकते हैं कि इंडिया इज अ कंप्लीटली फ्यूडल कंट्री और इंडिया इज अ कंप्लीटली कैपिटलिस्ट कंट्री या फिर मिक्सचर ऑफ बोथ. सो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स इंडिया में एक साथ मिलके इन लोगों ने एक बहुत फेमस डिबेट किया था इन द सीरीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, अ वेरी फेमस जर्नल जहां पे इन लोगों ने आर्टिकल्स के बाद आर्टिकल्स लिखे थे. यस. Now, Utsa Patnaik is one of those persons who first initiated it. However, you also need to recall कि किसने क्या कहा था. It is not just Utsa Patnaik, but many people later who joined this debate are Amit Bhaduri, Paresh Chattopadhyay. Just at least remember the names so that when they ask you, you people are at least aware कि इन लोगों ने किया था, so that you can take the odd one out. Yes. Very good. Hamza Alavi. Right. Gail Omvet. Many such people. AR Desai nahi aate hain. Oh God, this is pathetic coming from you. People don't even know when does AR Desai belong from. 1970s में के इंसान थे क्या AR Desai? Pathetic. This I thought you people are studying since 2 years. आप लोगों को पता है AR Desai कौन से टाइमलाइन से बिलोंग करते थे? Horrible. Anyway, let's come back. Alice Thorner and his husband Daniel Thorner. Very good. इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि ये सब ओवर स्मार्टनेस छोड़ के जाके टाइमलाइन वीडियो देखो आप लोग. मैंने आप लोगों को बोला था यूट्यूब में जाके मैंने 2 टाइमलाइन वीडियो बनाया था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के टाइमलाइन और वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट के टाइमलाइन. बस आप लोगों को टाइमलाइन तो याद रखना है ना, बस नाम एनफ रखने से कैसे होगा? कौन कौन से टाइम से बिलोंग करता है एटलीस्ट वो तो याद रखो, सो दैट इन सारे क्वेश्चंस में आप लोग इस तरीके का आंसर मुझे ना दे कि AR Desai is talking about mode of production debate. He will probably have a heart attack now if in his dead body again if he gets to know that he worked on mode of production debate. Alice Thorner and Daniel Thorner. Yes. कुछ कुछ चीजें आप लोगों को याद रखना है. Some students are asking कि डिटेल में याद रखना है कि नहीं इन लोगों ने क्या कहा था. Yes, certain things you need to. For example, उत्साह पटनायक ने क्या कहा था? What was उत्साह पटनायक's point? तो ये आप लोगों को थोड़ा याद रखना है. नेट में भी आ चुका है. What was who said that India had a semi-capitalist mode of production? So इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर हमारे उत्साह पटनायक हो जाते हैं. So these you people have to little bit go through. And more than that, you can also go through the books names of these people at max. इससे ज्यादा डिटेल में आप लोगों को मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा. ओके. बट हाउएवर आपको और एक चीज याद रखना है. इस कॉन्टेक्स्ट के बाद जब ये हो गया था, हमें पता है कि इंडिया में बहुत फेमस ग्रीन रेवोल्यूशन आया था. अब ग्रीन रेवोल्यूशन पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है इंडिया में. फॉर एग्जाम्पल यस, स्वामीनाथन तो चलो ठीक है, ही इज नॉट अ सोशियोलॉजिस्ट, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और a character in the green revolution, but there's a person known as Tom Brass जिन्होंने ये कहा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद इंडिया में प्रोलेटेरियनाइजेशन या फिर डीप्रोलेटेरियनाइजेशन हो रहा है. एंड इट्स अ नेट क्वेश्चन. आई एम गिविंग दिस फ्रॉम नेट PYQ. सो दीज काइंड ऑफ पीपल, कुछ कुछ इधर उधर से आप लोग कीवर्ड्स उठा सकते हैं, किसने क्या कहा था क्या नहीं, लाइक दैट. सो व्हेन आई डू PYQs विथ यू पीपल, यू हैव टू नोट ऑल दीज थिंग्स डाउन.
वहीं से पता चलेगा हाउ मच इंपॉर्टेंस और हाउ मच अटेंशन यू पीपल आर गिविंग। एक एक पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होता है, नॉट नेसेसरी कि वो पीवाईक्यू रिपीट हो, बट देन एटलीस्ट उस पीवाईक्यू के जैसा ही और एक क्वेश्चन आ सकता है, मान लो उसी थिंकर से रिलेटेड आ गया। सो इफ यू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, नॉट ओनली यू लर्न थिंकर्स के नाम, बट ऑल्सो एक फ्रेमवर्क पता होता है। सो हाउ डू यू थिंक आई गॉट टू नो दीज पीपल? मैं तो बिल्कुल भी इस फील्ड से नहीं हूँ। सो द मोर एंड मोर यू सॉल्व क्वेश्चंस, आपको नाम दिखते हैं। अब 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन होता है, उसके अलावा जो बाकी 3 ऑप्शंस होते हैं, इट्स योर ड्यूटी टू गो थ्रू देम एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार there was a question जिसका ऑप्शन में डेविड हेल्ड was also there पर डेविड हेल्ड करेक्ट आंसर नहीं था। अब अगर आप इनसिंसियर स्टूडेंट है, आप नहीं ढूंढेंगे कि ये डेविड हेल्ड इंसान है कौन, बट इफ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट यू विल ट्राई टू फाइंड आउट हु इज दिस डेविड हेल्ड। एंड आफ्टर अ फ्यू इयर्स डेविड हेल्ड से क्वेश्चन आ गया। स्टुअर्ट हॉल के कल्चर ऑफ सर्किट ऑफ कल्चर के बारे में क्वेश्चन आया था। स्टुअर्ट हॉल एज अ नाम ऑलरेडी आया था ऑलरेडी नेट में। नाउ इफ यू पीपल हैड सर्च्ड प्रॉपरली तो फिर वो स्टुअर्ट हॉल वाला क्वेश्चन भी सही करके आते नेट में। सो दीज आर स्मॉल ट्रिक्स थ्रू विच यू कैन ऑलवेज इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। ऑलराइट, अच्छा नाउ मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक तो क्लास मैंने स्पेशल क्लास में लिया था, द लेसर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट थियरीज। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने प्लस में पढ़ाया था। जस्ट इन केस यू पीपल डू नॉट नो, हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं विच आर द इंपॉर्टेंट थियरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहली बात आप लोगों को ये याद रखना है कि इन थियरीज के 2 टाइप्स होते हैं। ओके, वन जो मॉडर्नाइजेशन थियरीज के सपोर्टर्स होते हैं, दे आर द सपोर्टर्स। अब मॉडर्नाइजेशन थियरीज वाले कौन से हैं? जो वेस्टर्न कंट्रीज के ट्रेजेक्टरी को सपोर्ट करते हैं, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं। दूसरे वाले होते हैं न्यो मार्क्सिस्ट्स। ये लोग बोलते हैं कि वेस्टर्न लोगों ने हमें लूट के, they looted us and then how they became rich, so we should not be following their strategy at all, or rather their strategy is wrong. So neo marxist में सबसे फेमस आ जाता है द डिपेंडेंसी स्कूल। यस, डिपेंडेंसी के बाद वर्ल्ड सिस्टम्स, these are certain famous theories. Now modernization में कौन कौन से theories हमें पढ़ने होते हैं? Gramsci is nowhere as an economist, so don't just throw names. Yes, वेरी गुड। मॉडर्नाइजेशन के सपोर्टर्स में हम सबसे पहले रखते हैं W रोस्टो। नाउ रोस्टोस थियरी के जो 5 स्टेजेस हैं वो सारे आप लोगों को याद रखना है, कौन सा स्टेज आया था किसके बाद। इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल चेंज या फिर डुअल सेक्टर मॉडल। डुअल सेक्टर मॉडल किसने दिया था? आर्थर लुइस ने, द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन डेवलपमेंट एंड अ नोबेल laureate, Arthur Lewis. These are certain important theories that you people need to recall. डिपेंडेंसी में हम लोग 2 लोगों को ज्यादातर फोकस करते हैं, दैट इज एजी फ्रैंक एंड सामिर आमिन। बट इनसे पहले 2 और लोग थे जिन्होंने ये थीसिस दिया था, जिसका नाम है प्रेबिश एंड सिंगर। ओके, वर्ल्ड सिस्टम्स थियरी में हम लोग रखते हैं वॉलरस्टीन को। नाउ if you categorize these theories in these 2 types, it's easier to understand because neo-Marxist लोग Western countries को criticize करते हैं कि these people have become developed or rich at the cost of the poorer countries. इन लोगों ने हमको dependent बनाया इन पे, इसलिए हम लोग इस तरीके से अभी भी गरीब हैं। And these people are saying, modernization वाले, कि अगर आपको modern होना है तो Western countries का रास्ता ही चुनना है आपको। और हम सबको पता है कि Western countries have gotten rich how? Through colonialism. हम जैसे गरीब कंट्रीज को कॉलोनाइज करके ही ये लोग रिच बने। यस, सो दीज आर सर्टेन 2 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ थियरीज। इसके अलावा देयर आर सेवरल लेसर नोन थियरीज ऑफ डेवलपमेंट। अब लेसर नोन पे मैंने एक स्पेशल क्लास लिया था, सो यू पीपल कैन ऑलवेज गो टू द स्पेशल क्लास एंड वॉच इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। लेसर नोन में हम लोग सबसे पहले रखते हैं द ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच दिया था अमर्त्य सेन ने, उसे हम लोग कैपेबिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं। यस, कैपेबिलिटी अप्रोच। इसी के बेसिस पे एचडीआई दिया था महबूब उल हक ने। सो एचडीआई के बारे में सारी चीजें आपको याद रखना है। व्हाट इज द इंडेक्स, क्या क्या पार्ट्स होते हैं इस इंडेक्स में। हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे। एजुकेशन, हेल्थ एंड
इनकम, ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम, या फिर इन प्रॉपर टर्म्स वी कॉल इट पर कैपिटा और जीएनआई पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. Yes. Now we'll also come to some more theories. For example, post development. यानी कि सब लोग डेवलपमेंट के पीछे भाग रहे हैं, बट व्हाट इफ वी डोंट फोकस ऑन डेवलपमेंट इटसेल्फ, कुछ और तरीका निकाले. इसका सबसे बड़े प्रोपाउंडर थे आर्टूरो एस्कोबार. Yes, Arturo Escobar is one of the finest propounders of this theory. इसके अलावा some more Western theories, for example, हेरोडोमर, जो इंडिया के फर्स्ट 5 year प्लान में यूज किया गया था, रॉबिन्सन्स थियरी, सोलो मॉडल, दिस आर ऑल फेमस इकोनॉमिस्ट्स मॉडल. बस क्रक्स याद रखना है, आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस एक एक लाइन में कि ये थियरी क्या बोलता है, अगर कोई फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला क्या है, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट इन डिटेल. यस. उसके बाद right, I have already explained these in that class, so please go back to that class and watch it. Okay. Now things that I have already taken in special class, why don't you people utilize it? ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ा था. यस. हेरोड डोमर के मॉडल्स अलग नहीं है. हेरोड और डोमर ने अलग अलग जगह पे थियरीज दिया था, बट बाद में देखा गया कि दोनों की थियरीज सेम है, देयरफॉर वी कीप देम टुगेदर. ओके. अच्छा, नाउ सम मोर लेसर नोन आर, फॉर एग्जांपल, गांधीज थियरी. इंडिया में गांधी ने क्या कहा था, कैसे डेवलपमेंट लाना चाहिए. सो एवरीथिंग अबाउट गांधीज थियरी, विलेज को डेवलप करना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करना चाहिए, सर्वोदया मॉडल, स्वदेशी मॉडल, स्वराज मॉडल, ट्रस्टीशिप, कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए. दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू पीपल नीड टू रिकॉल. और एक चीज जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, एंड दे ऑलवेज मेक दिस मिस्टेक, इज दैट अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पोस्ट 1947 इंडिया में कौन सा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट फॉलो किया गया था, ऑलवेज टिक मिक्स्ड. बट अगर आपसे पूछा गया कि पोस्ट 1991 क्या फॉलो किया गया था, ऑलवेज टिक neoliberal. Okay. So please remember this. Now poverty and exclusion के टॉपिक में I have taught certain portions of poverty and exclusion in फाउंडेशन क्लासेस सीरीज. जब मैं दिसंबर जनवरी में आप लोगों को फ्री वाले क्लासेस पढ़ा रही थी, फाउंडेशन क्लासेस, वहां पे मैंने ये टॉपिक के काफी सारे टॉपिक्स फ्री में ही पढ़ाए हैं, जैसे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी, एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, किसने किस पे काम किया है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के कौन से लोग हैं जिन्होंने काम किया है, रिलेटिव पॉवर्टी वाले कौन है. कैन यू टेल मी सम नेम्स? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में कौन से इंसान है जिन्होंने बहुत फेमसली काम किया था? The person behind the model of absolute poverty? Very good. It is Rowntree. And relative poverty में हम लोग रखते हैं, who do we keep under this? Townsend. Very good. These are all famous economists. बस कुछ नाम आप लोगों को याद रखना है. Yes. Absolute में आप लोगों को BPL का कॉन्सेप्ट याद रखना है, etc. Yes. इंडिया में कौन सा फॉलो होता है? Which model is followed in India? Absolute poverty or relative poverty? Very good. It is always absolute because we always have a BPL line. Very good. So remember these concepts. They are very easy. It's very important for you people to recall. अगर recall नहीं हो पा रहा है, that means you people are not studying sincerely enough. Now the next topic is factory and industry systems. पहले के सिलेबस में, the syllabus that we used to follow before, वहां पे एक complete section हुआ करता था on industrial sociology, जो अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है. You do not have to read about industrial sociology, workers, types of protests. ये सब नहीं जानना है. एक बेसिक ऊपर ऊपर से आप लोग पढ़ सकते हो, बट फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री सिस्टम्स में ज्यादातर what you people need to read about is what I'll tell you now. फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री सिस्टम्स में यस, डेफिनेटली लेबर लॉज तो है ही, सारे के सारे लेबर लॉज. मैंने एक पूरा क्लास लिया था स्पेशल क्लास में, कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ लेबर लॉज पे. इंडिया में कौन से लेबर लॉज है, कब आया था, अमेंडमेंट क्या है, कौन से लेबर लॉ में क्या मेंशन है. दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स. इसके अलावा
Need to know a theoretical background. Factory and industrial system. Factory is a smaller term, whereas industrial system is a larger umbrella term. Yes, factory is just a means to produce under the industrial system. Sorry, backward नहीं, background आप लोगों को देखना है. What is the background I'm talking about? The theoretical background, that is starting from Taylorism, उसके बाद Fordism, उसके बाद post Fordism. These are certain things. अब आजकल क्या हो रहा है? Certain new terms such as formal, informal economy. Yes. Elton Mayo का famous study, human relations study, yes, or human relations approach. Yes. Yes, very important. Hawthorne studies भी हम लोग बोलते हैं इसे. These are certain things. अब काफी टाइम क्वेश्चन में आपको टेलरिज्म के बारे में पूछा जाता है. Students stick Fordism. Always remember, guys, Taylorism is the main principle. Taylorism is the main principle. Whereas फोर्ड तो बस एक बिजनेसमैन थे. फोर्ड ने फॉलो किया था टेलरिज्म के प्रिंसिपल को. सो फोर्डिज्म इज नथिंग बट टेलरिज्म. सो अगर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है इस प्रिंसिपल के बारे में, नेवर टिक फोर्डिज्म, टिक टेलरिज्म. ओके. फोर्ड वाज अ बिजनेसमैन. उन्होंने टेलर का मॉडल को लेके इम्प्रोवाइज किया था इन हिज प्रोडक्शन ऑफ कार्स. Okay, for example, assembly line production, conveyor belt, time management, this that, scientific management of work. Scientific management के theory ही हम लोग बोलते हैं फ्रेडरिक टेलर ने दिया था, etc. These kind of things. Now, how is it different from post Fordism? Now, पहले के टाइम में एक ही फैक्ट्री के अंडर सारे काम होते थे, बट नाउ डेज इट्स नॉट लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बिल्ड अ कार, उस गाड़ी का टायर कहीं पे बन रहा है, उसका ग्लास कहीं पे बन रहा है, सीट्स कहीं और पे बन रहा है. सो नाउ द वर्क प्लेस और द प्रोडक्शन साइट हैज बिकम scattered. It is no more limited to one factory or under one roof. वर्क हैज गॉटन फ्लेक्सिबल. वेरी गुड. फ्लेक्सिबल हो गया है काम. अभी मैं घर पे बैठ के आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जस्ट लाइक दैट. सो वर्क स्पेस हैव बिकम फ्लेक्सिबल. वर्क कल्चर हैज ऑल्सो बिकम फ्लेक्सिबल. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी दिस. और बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड भी हो गया है आजकल. कस्टमाइजेशन पे ज्यादा फोकस दी जाती है. यू पीपल मस्ट हैव सीन कि कोई भी ऑनलाइन आप कुछ खरीदना चाहते हैं, हमेशा देयर इज एन ऑप्शन कस्टमाइज. आप अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हो, बट पहले के टाइम में इट वाज नॉट दैट. यस. अच्छा. Now, one more term that you people said. राइट. नाउ इसी कॉन्टेक्स्ट में, पोस्ट फॉर्डिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ही और एक वर्ड आता है, दैट इज पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म. पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म में आपकी बहुत सारे फीचर्स हैं, बट एक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले के टाइम में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे ज्यादा जोर दी जाती थी, बट आजकल इट इज नॉट मैन्युफैक्चर बट द सर्विस सेक्टर. यस, वेरी गुड. सर्विस सेक्टर ही आजकल रूल कर रहा है. बैंक, डिलीवरी सिस्टम, होटल्स, ये सारे पार्लर्स, बीपीओस, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर. आजकल इकोनॉमी को सर्विस सेक्टर ही चलाता है, और सर्विस सेक्टर को हम लोग टर्शियरी भी बोलते हैं. क्या कैन यू टेल मी कि इंडिया के जीडीपी में टर्शियरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है? इंडियन जीडीपी में टर्शियरी सेक्टर क्लोज टू कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है? क्लोज टू हाउ मच? एनी गेसेस? At least plus students should be knowing about it. How much does the tertiary sector contribute? Very good. It's close to 60% approx. Very good. 60% of India's GDP is coming from the tertiary sector. Remember, and agriculture का कितना है? Can you tell me? How much is agriculture contributing? अगर 60% tertiary ले गया, agriculture कितना करता है? Very good. Some of you are close. That means you people have studied. Very good. It is close to 16% only. क्वेश्चन को समझिए. आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे मैथ्स नहीं आता क्या आप लोगों को? मैक्सिमम परसेंटेज कितना होता है? 100. अगर 60 ले गया टर्शियरी तो 70% एग्रीकल्चर. व्हाट इज रॉन्ग विथ यू पीपल?
आई हैव सीरियस डाउट्स वेदर यू पीपल हैव एक्चुअली पास स्कूल और नॉट. मुझे तो डाउट लगता है. आप लोगों को नहीं पता परसेंटेज 100 होता है मैक्सिमम. अगर 60% टर्शियरी सेक्टर ले गया, आप लोग बोल रहे हो 70% एग्रीकल्चर परसेंट, मतलब 100 से क्रॉस कर गया. इज दिस, इजंट इट फनी दैट यू पीपल आर गिविंग मी सच आंसर्स? Think of yourself, reflect on what you people are doing. Sheer unusage of your common sense. 130% थोड़ी होता है. Yes. सो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है. 70% से ज्यादा हमारे इंडिया के लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है. फिर भी एग्रीकल्चर सिर्फ 16% ही जीडीपी कंट्रीब्यूट कर पाता है. दैट शोज हाउ बैड इज द सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर. यस. सो डिपेंडेंस का क्वेश्चन अलग, जीडीपी कंट्रीब्यूशन का अलग. आधे लोग डिपेंडेंस का आंसर दे रहे हैं. सो एटलीस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग, इजंट इट? Such easy things. These are just, I feel these are just 10th level things that you people need to remember. इसमें भी आप लोगों को याद नहीं होता. नो सी, इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम. मैं आप लोगों को ऐसी नहीं डांट रही हूँ कि फर्स्ट टाइम आप लोगों ने गलत ये किया. एवरी क्लास, एवरी डे यू स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स. हर दिन तो आप लोगों के पास एक्सक्यूजेस नहीं होता है कि नेट स्लो है, वो है. यस. इट्स अ प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट. हम लोग जैसे पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में, ग्रेजुअल सोशल चेंज. तो ग्रेजुअली मेरे पे इफेक्ट हो गया स्टूडेंट्स के आंसर्स को, एंड देन आई एम स्कोल्डिंग यू पीपल. अच्छा, चेंजिंग नेचर ऑफ लेबर रिलेशंस में थोड़ा बहुत लिटिल बिट अबाउट ट्रेड यूनियंस. कौन से ट्रेड यूनियंस हैं हमारे इंडिया में, कब आया था बिगेस्ट स्मॉलेस्ट ट्रेड यूनियन, कौन सा ट्रेड यूनियन ने कोई फेमस स्लोगन दिया होगा. तो जस्ट द मेजर स्निपेट्स और जीके रिलेटेड टू दीज ट्रेड यूनियंस. लेबर लॉज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए. जेंडर और लेबर प्रोसेस में यू नीड टू नो सर्टेन कॉन्सेप्ट सच एज फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर. फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है औरतों का, कितने औरतें काम करते हैं, फीमेल, एटसेट्रा, दीज थिंग्स. यस. Business and family में you can simply read about certain original castes in India which have been involved in these. For example, Marwadis, Baniyas, etc. जो originally बहुत सालों से हमारे business में included हैं. They are more like business castes. हम लोग उन्हें business caste के नाम से ही बोलते हैं. Yes. अच्छा. डिजिटल इकोनॉमी एंड ई कॉमर्स. डिजिटल इकोनॉमी में यू कैन जस्ट गो थ्रू द मीनिंग क्या है. अगर डिजिटल इकोनॉमी के कोई स्कीम्स है इंडिया में, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है. ई कॉमर्स इज ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स ऑनलाइन, एटसेट्रा. ग्लोबल बिजनेस एंड कॉर्पोरेट्स में यू नीड टू नो अ लिटिल बिट अबाउट सर्टेन कॉन्सेप्ट्स सच एज gig economy is just informal sector economy. I have explained also in the plus class in detail what is gig economy, so go back and watch that class. I want you people to remember that corporates वाले topic में little bit about what is transnationalism, ट्रांसनेशनल कंपनीज क्या होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होते हैं. इसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बहुत थियरी भी डाल दो. जैसे यस, एसईजेड्स के बारे में पढ़ सकते हैं, ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ सकते हैं. What is brain drain? These are all questions which have asked. So इसके आसपास जो भी related topics हैं उन्हें हम लोग देख सकते हैं. Yes. क्या होता है मल्टीनेशनल कंपनी में, क्या नहीं. इसके अलावा देयर आर सेवरल मोर थिंग्स दैट यू कैन रीड. फॉर एग्जांपल, अगर ग्लोबलाइजेशन हुआ है, यस, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स क्या है इकोनॉमी वाइज, इकोनॉमी के हिसाब से इफेक्ट्स क्या है, क्या क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, these kind of things that you people can remember. Yes. Acha, another thing that I forgot to tell you, you also need to know the types of workers. Very very important. Challenges of globalization. Yes. टाइप्स ऑफ वर्कर्स में जैसे हम लोग पढ़ते हैं व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, पिंक कॉलर, ऐसे बहुत सारे और कॉलर्स हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, द फेमस वंस. ये थोड़ा बहुत क्लियरली आप लोगों को देखना है बिकॉज काफी बार क्वेश्चन आ चुका है इनमें से. यस. सीएसआर के बारे में वी जनरली स्टडी इन यूनिट 10, बट इफ यू वांट यू कैन कवर सीएसआर हियर एज वेल. लिटिल बिट अबाउट सीएसआर, व्हाट इज सीएसआर, व्हाट डू दे एक्चुअली डू, how much percentage of revenue they have to give, these kind of things. Yes. So ये हो गया. उसके बाद कुछ stats आप लोगों को देखना है, some major stats. For example, percentage of workers in formal sector. कितने इंडियंस फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं बताइए जरा.
How many workers work in formal sector in India? Very good. Close to only 8% of workers इंडिया के फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं. That means इनफॉर्मल में close to 92% हो जाता है. Also, you need to know a little bit about informal और formal क्या है, इसके features क्या है, these things. Women कहाँ पे कितना काम कर रहे हैं? Women, we know that 94%, close to 94% informal में काम करते हैं. Yes. इसके अलावा women के topic में you also need to go through some more topics such as सेवा, the largest NGO for women in Asia. Yes, सेवा क्या है, सेवा कब आया था, what are their functions, some more schemes जो मैंने आप लोगों को यूनिट 5 में पढ़ाया था, जैसे कुटुंबश्री मॉडल ऑफ केरला. These are some more models that you need to go about. Yes, yes. सेवा had come in Ahmedabad. टूरिज्म के बारे में some basics. इंडिया कहाँ पे आया था, क्या नहीं, कौन से टूरिस्ट एरिया ज्यादा फेमस है, some major GK based questions can come. Yes. उसके बाद टूरिज्म से कितना जीडीपी आता है, एटसेट्रा. हेरिटेज साइट्स क्या है इंडिया में, कुछ रैंक के हिसाब से, जैसे रैंकिंग मिलता है इंडिया के टूरिज्म इंडेक्स में, रैंक क्या है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स. कंजम्पशन के टॉपिक में यू नीड टू रीड अबाउट सर्टेन कॉन्सेप्ट सच एज कंस्पिकुअस कंजम्पशन बाय वेबलन, कलेक्टिव कंजम्पशन बाय मैनुअल कैस्टल्स. बहुत लोग, जैसे अभी के टाइम में सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं, अगर Amazon में सेल चल रहा है तो सब लोग कुछ ना कुछ खरीदेंगे. सो इट्स अ कलेक्टिव कंजम्पशन पैटर्न दैट वी हैव एंटर्ड. सो दीज थिंग्स you need to go about certain topics under this. Yes. अच्छा, now प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी रिलेशंस में सबसे पहले तो कुछ बेसिक थियरीज आप लोगों को जानना है. जैसे मार्क्स ने कहा था, प्राइवेट प्रॉपर्टी कब होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी कब नहीं होता है, व्हेन इज प्राइवेट प्रॉपर्टी नॉट देयर. यस, जैसे कम्युनिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था, प्रोधोन ने प्रॉपर्टी को थेफ्ट बुलाया था. दीज आर सर्टेन फेमस वंस. वेरी गुड. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को मैं पूछती हूँ और हमेशा स्टूडेंट्स गलत करते हैं, लेट मी सी इफ यू पीपल रिमेंबर. मार्क्स के मोड ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से बताओ कौन से मोड ऑफ प्रोडक्शन में आया. When did private property come as per Marx मोड ऑफ प्रोडक्शन. वेरी गुड. सो काफी टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं कैपिटलिज्म में. अरे कैपिटलिज्म में तो प्राइवेट प्रॉपर्टी डेफिनेटली है, बट स्लेवरी में फर्स्ट आया ना. अगर आप किसी को अपना स्लेव बोल के खरीद रहे हो, दैट मीन्स दैट पर्सन इज योर प्राइवेट प्रॉपर्टी. यस. सो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन स्लेवरी. प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया था, इसीलिए तो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट आया. The very fact that I can buy and sell somebody or I can buy and sell anything I want to do, that means private property का concept आ गया कि ये चीज बस मेरा है, आपका नहीं है. Yes. So ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है. इसके अलावा प्रॉपर्टी के टॉपिक में बहुत सारे और टॉपिक्स भी आ सकते हैं. Many people have given definitions. इंटरनेट में फ्रीली अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो. There are many definitions. उसके बाद many types, private property, public property, collective property, etc. Relations क्या होता है property के साथ? What is the difference between ownership and possession? Can anybody tell me one difference between ownership and possession? Intellectual property, another topic. Yes. What is intellectual property, etc. Ownership और possession के बीच any plus student? Because I have taught you people this. Very good. So possession में यस, ओनरशिप में लीगल चीज आ जाता है. देखो, अगर मैं बोलूं कि आई एम दी ओनर ऑफ दिस फोन, सो आई हैव दी ओनरशिप ऑफ दिस फोन, दैट मीन्स ये मेरा फोन है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ लीगली इसके साथ. मैं इसे बेचना चाहती हूँ, तोड़ना चाहती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ. बट अगर मैं बोलूं दैट आई एम इन पोजेशन ऑफ दिस पेन, दैट मीन्स ये पेन अब मेरे पास है, बट लीगली ये मेरा नहीं भी हो सकता है. सो पोजेशन डज नॉट कम विथ लीगल राइट्स ऑफ ओनरशिप. यस, ओनरशिप मीन्स लीगली मैं इसी का ओनर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल योर डैड्स कार और योर पेरेंट्स कार. अब ये पेरेंट्स का कार आपका ओनरशिप नहीं है, यू आर पोजेसिंग योर पेरेंट्स कार, बट यू डू नॉट हैव द ओनरशिप राइट्स ऑन इट. क्लियर.
So this is a brief outline of the whole unit. I hope आप लोगों को एक outline मिला है. Now let us go through some notes that I had included in today's class. For example, welfare state क्या है, कब आया था, ब्रेटन वुड एक बहुत फेमस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद दो इंस्टीट्यूशंस आए थे. कैन यू टेल मी व्हिच आर द फेमस ब्रेटन वुड्स ट्विंस? यस, वेरी गुड, वेरी गुड. व्हिच आर दे? कैन यू टेल मी which are the famous Bretton Woods twins? Very good. IMF and World Bank. मैंने एक क्लास लिया था ओनली ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को कि आईएमएफ के फंक्शंस क्या है, वर्ल्ड बैंक के फंक्शंस क्या है. मेनी स्टूडेंट्स टेंड टू कंफ्यूज. हमेशा याद रखना दैट वर्ल्ड बैंक works for welfare, so it gives out loans, it works on poverty alleviation programs, etc. IMF is nowhere a well doer. IMF is just like a bank. So if any country goes bankrupt, जैसे हमारा इंडिया का हुआ था 1990s में, 1990 में, तब IMF लोन देगा आपको और आपको काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शंस भी फिलफिल करने पड़ेंगे. सो IMF सिंपली लुक्स एट द बैलेंस ऑफ पेमेंट बिटवीन कंट्रीज, कि कौन से कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो रहा है तो उसे जाके लोन देंगे विद सर्टेन क्लॉजेस. बट वर्ल्ड बैंक is an institution that works for the welfare of many things. Now in this unit में हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, there are many indexes, HDI, GNI, GDI, जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, gender inequality index ho gaya. There are many such indexes that you people need to know. First of all, the meaning, hunger index, global hunger index. So the meaning and who issues that. For example, can you tell me global hunger index is issued by who? Global hunger index जो हर साल निकलता है वो कौन निकालता है? UNDP. Very good. So you need to know the organization and who is taking out or publishing these reports. It's very important for us to remember those. कुछ तो मैंने आप लोगों को दे ही दिया है, वो स्पेशल क्लास में ही दिया था. Now there are several more people. One more important economist is Gunnar Myrdal, whose concepts we study, especially the idea of soft state or cumulative causation theory. उन्होंने कहा था कि गरीब कंट्रीज गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सर्कुलर दिशाओं में चलते रहते हैं. No food, no job, no education, again no food, no job. So we are always circling around the same thing. We are not able to come out of that. Yes. इकोनॉमिक सोशियोलॉजी के बहुत सारे लोगों ने काम किया है. कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर्स प्रोटेस्टेंट एथिक्स, इमाइल डर्कहाइम्स मेजर वर्क ऑन सोशल डिविजन ऑफ लेबर, mechanical organic solidarity, Carl Polanyi, Niels Melzer is one of the key founders of economic sociology, structural change theory, etc. Please remember these. Neoliberalism, I told you, it's nothing but the modification of classical liberalism. Property systems में थोड़ा बहुत definition आप लोगों को देखना है. If you are an owner for property, what all you can do with the property. So these are the things that you can do. Types of property, collective, etc. Perspectives में classical liberalism I already taught you. Conservatism is like that जहाँ पे एक country closed रहता है, मतलब it does not export or import anything with other countries, only within its closed economy, no trade, nothing. Yes. Acha, so remember these things. Socialism, communism by Marx, you can go through them. Some more people and stages of property development, etc. Intellectual property क्या होता है? Human intellect. मान लो if you write a book, that will become your intellectual property. Yes. And people also give copyright, patents, trademarks, trade secrets share नहीं करते हैं, etc. Kibbutz is a property system that is found in Israel where people are, they hold land in terms of groups. So they are not families, बस एक एक ग्रुप होता है जो लैंड के ओनर्स होते हैं. इसी में जीपी मर्डॉक की थियरी जो कहा था, what is it called, can you share notes, please? I don't share notes. Don't keep asking me these things. You all know that all my notes are on Unacademy Plus and some on special classes. So don't ask me that. I have given you people all the free books, etc. So read from that. On this note only, the famous theory by GP Murdoch, where he said family is a universal institution, उसको criticize किया गया था किब्बुट्स के सिस्टम से, क्योंकि किब्बुट्स में लोग रहते हैं बिना फैमिली सिस्टम के, बस ग्रुप्स में रहते हैं. यस. और ये कहाँ होता है? इजराइल में.
सो प्लीज रिमेंबर दिस. इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी कब आया था? जॉर्ज एल्टन मेयो इज द फादर ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी. कुछ ट्रेड यूनियंस के बारे में, इंडियन ट्रेड यूनियंस कब आया था, क्या आया था, क्यों आया था, एटसेट्रा. यस. वर्ल्ड सिस्टम्स थियरी बाय इमानुएल वॉलस्टीन. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या फोकस करता है, एटसेट्रा. यस. अच्छा, नाउ प्लीज try and answer this question in polling. Don't answer in comments. Marx's focus on real existing contradictions led to a particular method for studying social phenomena. What is that method? Dialectical method, economic determinism, causality, class conflict. Read the question again. Real existing contradictions led to a particular method. अभी मैं polling दे रही हूँ. Let's see how many of you can understand the hint that I just gave you. Very good. Very good. At least majority have given correct answer. That is enough for me. बाकी लोगों ने गलत किया, does not matter, but at least majority you understood. Very good. The correct answer is dialectical method because it is talking about contradictions. एक system में दूसरे सिस्टम के साथ कॉन्ट्राडिक्शन होगा, फिर एक नया सिस्टम या फिर नया मोड ऑफ प्रोडक्शन विल बी द रिजल्ट ऑफ इट. सो हिज मेथोडोलॉजी इज ऑफन नोन एज डायलेक्टिकल मेटीरियलिज्म. यहाँ पे इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म नहीं होगा. इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी एनीवेयर इन द क्वेश्चन. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल while understanding कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. जस्ट बिकॉज मार्क्स का मेथड हमारा इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है तो क्वेश्चन के सारे आंसर्स इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ऑफ कोर्स नहीं होंगे. यस. Contradictions means what? I don't know the contradictions Hindi. I'm so sorry. If anybody can explain in Hindi to my fellow Hindi students, it will be very nice. Some Hindi term if you people have. इस क्वेश्चन का हिंदी वर्ड अगर आप लोगों के पास है तो आप बता सकते हो. मतभेद. यस, वेरी गुड. अगर हमारे सिस्टम में कोई मतभेद है या फिर कोई द्वंद दिखाई देगा तो एक नया सिस्टम आएगा. जैसे डायलेक्टिक्स का थियरी हम पढ़ते हैं, वाद विवाद संवाद, वैसे तो उसे हम लोग डायलेक्टिकल मेथड बोलते हैं. यस, राइट. डिपेंडेंसी थियरिस्ट फ्रॉम लो इनकम कंट्रीज ड्रू ऑन द आइडियाज ऑफ. डिपेंडेंसी थियरिस्ट जो हैं उन्होंने किसके आइडियाज पे अपना डिपेंडेंसी थियरी बनाया था? वाल्ट रोस्टो, कार्ल मार्क्स, इमानुएल वॉलस्टीन, ब्रेटन वुड्स. Very good. 20% who gave correct answer. I'm very proud of you. At least you people have common sense जो बाकी स्टूडेंट्स के पास बिल्कुल ही नहीं है. Very good. मैंने अभी आप लोगों को क्लास में बताया था कि डिपेंडेंसी इज अ स्कूल कमिंग फ्रॉम न्यू मार्क्सिज्म, यानी कि ओरिजिनली मार्क्स के थियरी से आ रहा है. डिपेंडेंसी तो पहले आता है इमानुएल वॉलस्टीन के वर्ल्ड सिस्टम्स थियरी से. क्या दिमाग लगाते हैं आप लोग, सीरियसली पैथेटिक. 1 घंटा मैंने क्लास लिया, उसके बाद यू पीपल आर आंसरिंग दिस दैट समथिंग व्हिच कम्स लेटर, उस पे बेस करके ये थियरी आया था. I seriously don't know what is the problem with you people. Which is the effect of overpopulation? अगर एक जगह पे overpopulation हो रहा है तो इनमें से कौन सा इफेक्ट हो सकता है? Population and poverty, okay. Slow per capita income, shortage of food, all of the above. अगर overpopulation है कहीं पे तो उसके रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? Very good. So this is an easy question. At least आप लोगों ने लगाया है अपना दिमाग. I'm glad. 97% have given correct answer. Good. The correct answer is all of the above, which is not a type of unemployment. Seasonal unemployment, agricultural unemployment, cyclical, political unemployment. Think in terms of economics. जो हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स में, इनमें से कौन सा हमने कभी नहीं देखा? Very good. We will also briefly tell. I'll also briefly tell you कि ये types क्या है. वेरी गुड. तो सबसे पहला जो हम देख रहे हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे जो आम बेचते हैं या फिर जो आइसक्रीम बेचते हैं, उनका नौकरी सिर्फ सीजन में ही होता है. अब ठंड के दिनों में तो आप आइसक्रीम नहीं बेच सकते. यस. एग्रीकल्चरल में हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, जहां लोग काम तो कर रहे हैं खेतों में बट एक्चुअली पीपल डोंट हैव जॉब्स. मार्जिनल आउटपुट इज जस्ट जीरो. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मींस बिजनेस साइकिल की वजह से अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी कोविड की वजह से बिजनेस साइकिल ड्रॉप कर रहा है, सो अगर उसकी वजह से आपकी नौकरी चली जाती है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोल के कोई हमने नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट इन इकोनॉमिक्स. यस. अच्छा. The term informal economy is used to describe work where no money changes hands. ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था. The activities of small businesses, transactions outside the sphere of regular employment, organizations with less rigid rules and procedures. This question we have done before also in a free class also as well as plus class.
इनफॉर्मल इकोनॉमी का हम लोग इनमें से कौन सा डिफाइन करेंगे, ठीक है, या फिर डेफिनेशन देंगे, क्लियर? And I had explained you also why this is the answer several times on plus as well as free class. Let me see how many of you people remember this. Very good. 56% को याद है. Very good. The correct answer is number D. इनफॉर्मल इकोनॉमी वो होता है जहां पे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं होता है. बहुत लोगों को लग सकता है कि सी करेक्ट आंसर है. अरे आपका जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है उसके अलावा भी आप फॉर्मल काम कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप 2 फॉर्मल काम एक साथ कर सकते हैं. लेट्स assume you teach in a university and you also let's say teach in these kind of organizations like Unacademy. So दोनों फॉर्मल इकोनॉमी हो गया. So हम नहीं कह सकते हैं कि जो भी काम रेगुलर के बाहर होता है वो इनफॉर्मल होता है. क्लियर? A contribution to the critique of political economy is a famous book by, ये किसका किताब है? बहुत फेमस बुक है ये. इस बार नेट में भी तो पूछा गया था. So at least you need to know the famous books of famous authors. Very good. The correct answer is Karl Marx, and this has come in this year's NET paper as well. What is the main role of International Monetary Fund? अभी मैंने बताया, to reduce the levels of global inequality, to generate economic activity in developing countries, to maintain the stability of world financial system, to provide funds for education. अभी मैंने आपको बताया था IMF का फंक्शन क्या होता है. Very good. At least you heard it. I'm glad. हमेशा याद रखना IMF का यही फंक्शन होता है. So 65% जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, आई एम हैप्पी दैट यू पीपल हर्ड me while teaching you this, otherwise there is no point. Which of the following is not a feature of globalization? Increasing awareness of the world as a whole, extended power of nation states, the destruction of distance through communication technology, stretching of social relations beyond national boundaries. इनमें से कौन सा ग्लोबलाइजेशन के बाद नहीं होते हुए दिखाई देता है? और ये पॉइंट मैंने बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया है. In different ways, I have taught you people to remember this. Very good. At least I'm glad 60% को याद है. Very good. Very good. The correct answer is extended power of nation states. कभी भी नहीं होता है. Nation states का power कम हो जाता है when globalization happens. So please keep updated with the classes that I take. Otherwise यही हालत होगा. एग्जाम में भी आप लोग यही करेंगे. The last question for the day. Feminization of poverty refers to critical deconstruction of poverty by feminist theorists, women's increased chances of being in poverty due to low pay, greater welfare dependency, etc. The way in which managing a budget and avoiding poverty tends to be a woman's responsibility within a home. The disproportionate number of female sociologists who do research on poverty. Feminization of poverty term का इनमें से कौन सा meaning है? This is the last question. उसके बाद we will see the leaderboard. Very good. 71% gave correct answer. Very good. Let us see the leaderboard then. Neha, Rishi, 9 on 9. Sunny, Bikram, Junaid, Debayan, Snehashri, Prachi, Patul, Priyanka, 8 on 9. Good. The correct answer is this. Feminization of poverty means कितने सारे औरतें दिन ब दिन ज्यादा गरीबी में घसीट रहे हैं. What are the number of people or number of women being coming to the number of within the realm of poverty? Yes, I already showed the leaderboard. Students who had to see have already seen. So thank you so much. I think हम लोगों ने सारे units revise कर लिए. एक unit हमारा बाकी था. One unit is left. I will revise that. I think that's unit 10 most probably. I don't recall. I'll check and let you know. And all the class updates, you people have to follow the Telegram so that you get all the class updates. YouTube के 3 classes हमने miss किए हैं इस महीने, जो मैं अभी last के 3 दिन में cover करने वाली हूँ. Okay, so don't miss them. All right, bye everyone, and do watch the video that I will put up on YouTube tonight. Okay, bye everyone.